This question always remains in news. Ki why punishment is awarded. In fact, many times you have seen the essay ki should capital punishment be abolished in India. This type of things always comes in the newspaper. So this topic, this will be useful in essay, argument, report, and interview. Why I took this topic? If you read today's The Hindu newspaper, there is an article on front page. Sidhu gets 1 year rigorous imprisonment in road rage case. That road rage case is 34 years old, where Sidhu was involved and a person was killed. So in 2018, Supreme Court awarded him just 1,000 rupee penalty. But after review petition was filed in Supreme Court, so in 2018 judgment was this. So in that case, Supreme Court gave the judgment that Sidhu should get 1 year rigorous imprisonment. Justice A.M. Khanwilkar and Justice Sanjay Kishan Kaul awarded him the punishment. So this is the article you should read. It is not about ki Sidhu gets 1 year imprisonment. It is not about ki he is the person who is famous, either in terms of cricket or politics or comedian or something. It is about the content. As an AEA aspirant, UPSC aspirant, some of the content you should go through. Yes, you should go through the entire article. But what is important for you to quote in terms of essay, report, argument, or you can say about interview. So just few lines I have taken, and I'm just presenting you in a way. Okay, so it is about some of the quotations, means some of the observations quote have made, and you can directly quote this. Many time you people, many aspirants claim that from where I should get content, from where newspaper, how I should get. No doubt, at first instance, you will see this news is as political. For example, this news may seem political, but there are some substantial content and very good content you should take them. Okay, so court said, a punishment to be awarded for a crime must not be irrelevant, but it should conform to and be consistent with the atrocity and brutality with which the crime has been perpetrated, the court noted. So जो आपका पनिशमेंट होना चाहिए वो आपका इरिलीवेंट नहीं होना चाहिए, रिलीवेंट होना चाहिए. क्यों? अब देखो, इसमें एक पर्सन का डेथ हो जाता है और कोर्ट ने एक तरह से 1,000 रुपी का पनिशमेंट दिया. ऑब्वियसली इट वाज नॉट, सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है. किसी का डेथ होता है, किसी का किलिंग होता है, तो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि किस सर्कमस्टांसेस में हुआ है. तो ये कहता है कि पनिशमेंट टू बी अवॉर्डेड फॉर ए क्राइम मस्ट नॉट बी इरिलीवेंट. इरिलीवेंट नहीं होना चाहिए, बट it should conform to and be consistent with the atrocity and brutality with which the crime has been perpetrated. Okay, next आपका ये quotation है कि a manifestly inadequate sentence would fail to produce a deterrent effect on the society at large. Punishments are awarded not because of the fact that it has to be an eye for an eye or a tooth for a tooth. They are awarded for the due impact on the society. While undue harshness is not required, but inadequate punishment may lead to sufferance of the community at large. देखो, हमारे यहाँ सिस्टम है कि जो पहले के टाइम में देखोगे कि एन आई फॉर एन आई और अ टूथ फॉर अ टूथ, तो वो जो महात्मा गांधी जी कहते हैं ना कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, तो ये हमको नहीं करना. और जो पनिशमेंट होना चाहिए, अनड्यू हार्श भी नहीं होना चाहिए कि किसी ने कुछ ये किया तो उसका आप हाथ काट लो, उसके पैर उखाड़ लो, या पब्लिकली आप उसको हरास करो, तो वो नहीं करते हैं. यस, कुछ कंट्री में अभी भी इस टाइप के सिचुएशंस हैं. फॉर एग्जांपल कुछ सरिया लॉ जो जो फॉलो प्रॉपर तरीका से करते हैं. देखो, इंडिया में क्या है कि जो क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ में आपका एक तरह से यूनिफॉर्मली वो फॉलो होता है, लेकिन सिविल लॉ में देयर आर डिफरेंसेस.
तो फॉर एग्जांपल शरीयत लॉ यदि देखोगे तो उसमें क्रिमिनल लॉ जो है वो बहुत टफ हैं कि आज भी देखो कोड़े से मारना या फिर पत्थर मारना, ये सारी चीजें, लेकिन हम इंडिया में इस ढंग से नहीं करते हैं। इसी वजह से देखोगे कि जो मूव लिंचिंग है, मूव वायलेंस है, उसको एक तरह से इंस्टेंस जस्टिस बोलते हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू फॉर सोसाइटी, सिविलाइज्ड सोसाइटी और फॉर डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इट इज नॉट जस्टिफाइड। यस, एनी क्राइम इज रॉन्ग। We are not justifying कि someone has committed the crime then it is good. No, it can never be, even if crime is very small. लेकिन हम उस चीज के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस है। आपका किसी का भी लाइफ है तो वो लाइफ वंस गोन इज गोन, वी कैन नॉट रिकवर बैक। सो किसी के भी लाइफ को लेने के पहले, किसी के भी जान लेने से पहले वी हैव टू टेक केयर। लेकिन जो हमें हर वो पनिशमेंट जो होता है कैपिटल पनिशमेंट ही नहीं होता है, लेकिन स्मॉल पनिशमेंट भी दिया जाए तो वो उसके अनुसार वो जस्टिफाई होना चाहिए लॉ के अनुसार। एट द टाइम ऑफ क्राइम, कमिटिंग द क्राइम, जिस समय क्राइम कमिट किया गया है उस समय प्रिवेलिंग लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और वो जो पनिशमेंट हो वो इनह्यूमन नहीं होना चाहिए। अब इनह्यूमन इन द सेंस की ऐसा नहीं है किसी का कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है तो इन वन वे इट इज इनह्यूमन, बट देयर इज अ प्रोसीजर। सो नेक्स्ट आपका है कि नो अनड्यू सिंपैथी। किसी को भी कोई पर्सन, फॉर एग्जांपल यहाँ सिद्धू है तो कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन है और क्या कोई ऐसा पर्सन है हाई डिग्निटी का है या वीवीआईपी है, तो आप उसको अनड्यू सिंपैथी नहीं दोगे। अनड्यू सिंपैथी इसी वजह से कि जस्ट 1000 उन्हें फाइन दिया गया था। द कोर्ट courts should not show undue sympathy and impose inadequate sentence. This would do more harm to the justice system and undermine the public confidence in the efficacy of the law, bench said. तो ये कुछ जो है इनको आप डायरेक्ट कोट कर सकते हो, इनको आप नोट डाउन इसी ढंग से। सो मैं अभी रिसेंटली कैंडिडेट को सब को आप लोग को एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें बोला कि यदि आपका इंग्लिश वीक है तो आप एटलीस्ट डेली एक आर्टिकल को प्रॉपर तरीका से, किसी भी न्यूज़पेपर को, आप जिस भी न्यूज़पेपर को फॉलो करते हो, मेजोरिटी आप केसेस में देखोगे मेजोरिटी ऑफ न्यूज़पेपर जो है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं वो सब में आपके शामिल होते हैं। तो ऐसे ऐसे आर्टिकल्स को देखते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको आप नोट डाउन करके रखते हो। ये सारी चीजें आपको डायरेक्ट एज सच जो है वो लिखने में मदद करता है, वो आपको हेल्प करता है। अब इन द सेंस कि आप वर्ड टू वर्ड रिमेंबर नहीं कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट उसके क्रक्स जो है वो आप रख सकते हो। अब जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, आपको जरूरी नहीं हो सकता है आप भूल गए कि ये जस्टिस किन्होंने डिलीवर किया। अब फॉर एग्जांपल ये जस्टिस जो है डिलीवर किया गया जस्टिस एएम खानविलकर एंड जस्टिस संजय किशन कौल के द्वारा, लेकिन हो सकता है आप नहीं भी, लेकिन आप ये कर सकते हो ना, सुप्रीम कोर्ट बेंच इन नवजोत सिंह सिद्धू केस ऑब्जर्व दैट, तो ये आप कर सकते हो। ओके, तो ये चीजों को ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप करते रहो जहां जैसे होता है। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट होता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे मैसेज कर सकते हो, और जिन्हें भी टेस्ट वगैरह देना है दे आर मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू।